Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the new economic policy and the transformation of the market of India. Today, I want to tell you the previous lecture in brief form and in the simple words. आज मैं आपको पिछले वीडियो का थोड़ा सा ब्रीफ बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आपको बताने वाला हूँ. That new economic policy was adopted by the Indian government in 1991. नई आर्थिक नीतियों को भारत सरकार ने सन 1991 में अपनाया था. There were three components of that new economic policy: liberalization, privatization, and globalization. That's the reason that new economic policy is also known as the LPG policies. Okay, clear? Next, that while the Indian government adopted this policy in 1991, there were two or three reasons which were major reasons behind the adoption of these new economic policy. First, that was the fall of फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमारे देश के अंदर विदेशी मुद्रा का जो भंडार था उसमें कमी आ गई थी. सेकेंड रीजन वॉज इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा थी. एंड थर्ड वॉज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. ये बहुत से ऐसे मेजर रीजन थे कि इंडियन गवर्नमेंट को फाइनली 1991 में अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ा, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़ना पड़ा और प्राइवेटाइजेशन को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को अलाउ करना पड़ा कि टू सेट अप योर इंडस्ट्री इन आवर कंट्री इंडिया. मैंने आपको ये भी बताया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज यू नो दैट इंडिया वाज अ बैकवर्ड कंट्री एट दैट टाइम बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस डिड नॉट टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर 10 or 15 years after the independence. It came into India, industrialization came into India in 1960s and that process was very slow. So at that time we export the raw material from our India to the other countries and imported finished products from the different countries of the world. So that was the problem before the Indian economy. So in 1991, at that time, the Manmohan Singh was the finance minister of India under the prime ministership of P.V. Narasimha Rao. At that time, LPG policies were adopted by the Indian government. So today we start this chapter with some important terms. First we discuss about important terms, and today's topic is very interesting topic, that is MNC, that is multinational corporation. First we discuss about the important terms, then we will start our next topic of this chapter, that is MNC. So let us start with the first, that is globalization. Globalization, you know, is one of the major component of the new economic policy which was adopted by the Indian government in 1991. वैश्वीकरण एक मुख्य घटक है नई आर्थिक नीतियों का जिसे भारत सरकार ने सन 1991 में अपनाया था. What is globalization? Integration of the different economies of the world. विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण ही क्या कहलाता है बच्चों? वैश्वीकरण कहलाता है. Interaction and interdependence among the countries of the world is known as globalization. Is it clear? Okay. Next, liberalization. उदारीकरण क्या है? Liberalization of economy means to free it from direct or physical controls imposed by the government. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इंडियन टॉयज का और चाइनीज टॉयज का. मैंने बताया था कि चाइनीज टॉयज का प्राइस 10 रुपीज पर पीस है और इंडियन टॉयज का है 20 रुपीज. ऑब्वियस बात है कि कौन सा टॉयज बिकेगा? चाइनीज टॉयज बिकेगा क्योंकि इसका प्राइस काफी क्या है? चीप है. अब इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन पॉलिसी अपना रखी थी बिफोर 1990. 1990 से पहले हमने सुरक्षा की रणनीति, हमने अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को क्या कर रखा था? प्रोटेक्शन दे रखी थी. दैट्स वाज द रीजन कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डाल दी यहाँ पर? ट्रेड बैरियर्स डाल दी. ट्रेड बैरियर्स क्या होता है कि इम्पोज टैक्स, आप क्या कर सकते हैं? टैक्स इम्पोज कर सकते हैं. इट इज द राइट of the government of a country to check the flow of goods and services. हर एक सरकार का ये अधिकार है कि वो अपने देश के अंदर जो सामान आ रहा है, जो सेवाएं आ रही है, उसको क्या कर सकता है? वो चेक कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है. रिसेंटली 59 ऐप क्या किए? चाइनीज ऐप्स को क्या किया है? बैन किया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट का राइट है. कुछ बच्चों ने पूछा कि चाइना ने उसका विरोध नहीं किया. किसी भी देश को ये अधिकार होता है कि वो क्या कर सकता है? अपने देश के अंदर जो आ रहे सामान को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है. सर्विसेज को चेक कर सकता है कि वो कहीं उस देश के लिए क्या नहीं है?
लॉस का कारण तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकता है, और उसी कंट्रोल को क्या कहा जाता है, ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। फिर मैंने बताया था कि चाइनीज टॉयज के इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाकर 20 रुपीज कर दिया गया, और अब चाइनीज जो टॉयज थी उसकी जो कॉस्ट हो गई वो कितने रुपीज हो गई, 30 रुपीज हो गई। तो अब कौन सा खिलौना चीप हो गया, इंडियन टॉयज। अगर इंडियन टॉयज बिकेगा तो आपको पता है कि किस इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर पैसा जाएगा। सो बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स टू चेक फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 1991 से पहले व्यापार अवरोधक लगा रखे थे भारत सरकार ने, क्या नियंत्रित करने के लिए, जो भारत देश के अंदर सीमा के अंदर जो क्या आते हैं आपकी विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं आती है, उन चीजों को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। नेक्स्ट आपका लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मीन्स टू फ्री इट from the direct or physical controls imposed by the government. In simple form, remove trade barriers from the path of trade. Who put trade barriers? The government of a country put trade barriers. If we are removing those trade barriers in the path of trade, that is known as liberalization. इसको हम उदारीकरण कहते हैं। Next आता है privatization. In 1956, Indian government introduced licensing policy. License policy 1956 में शुरू की गई थी। Before any individual, if he wants to set up any industry in India before 1991, 1991 से पहले अगर कोई व्यक्ति हमारे देश के अंदर क्या लगाना चाहता, उद्योग लगाना चाहता था, तो उसे क्या लेना पड़ता था, सरकार से परमिट या लाइसेंस लेना पड़ता था। बट इन 1991 दिस लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस सिस्टम को 1991 में क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन? Privatization means allowing the private sector to set up industries which were earlier reserved for public sector. उन क्षेत्रों के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर, what is public sector? The sector which is owned and controlled by the government of a country, that is known as public sector. वह क्षेत्र जो सरकार के द्वारा संचालित होता है उसे हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। बट प्राइवेटाइजेशन का अर्थ क्या है कि कुछ व्यक्तिगत लोगों को क्या कर दिया गया, उद्योग चलाने का अधिकार दे दिया गया विदाउट एनी लाइसेंस। हाँ, 6 प्रोडक्ट है, 5-6 प्रोडक्ट हैं जो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उनमें लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे वो वाइन है, चाहे वो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस से रिलेटेड कोई अगर आप प्लांट लगाना चाहते हैं, इन आपका आर्म्स हथियारों का अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो इनमें आपको आज भी लाइसेंस लेना क्या होता है, जरूरी होता है। लेकिन बाकी सभी इन 6 को छोड़ के बाकी सभी जितने भी हमारे क्या हैं जो उद्योग हैं, वो सभी के लिए क्या कर दिए हैं, ओपन कर दिए हैं। कोई भी इंडिविजुअल क्या कर सकता है, इंडिया के अंदर अपनी यूनिट लगा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या मल्टीनेशनल कंपनी। It is a company which owns and controls over production in more than one nation. For example, Tata, Reliance, ये इंडिया के एमएनसी हैं। ये कहाँ के एमएनसी है, इंडिया की। वे कंपनियां जिनका उत्पादन पर नियंत्रण होता है एक देश से ज्यादा देशों में। द कंपनी विच हैज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन in more than one nation, that is known as multinational corporation. Next, investment, निवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का एक अल्टीमेट एम होता है टू अर्न प्रॉफिट। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका एक ही, किसान इन्वेस्टमेंट करता है, क्या करता है, खेत में बीज बोता है, फर्टिलाइजर डालता है, पेस्टिसाइड डालता है, इरिगेशन करता है, वो सारा उसका इन्वेस्टमेंट है और उसका एक ही मोटिव है, टू अर्न प्रॉफिट। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? The money that is spent to buy assets such as land, buildings, tools and other equipment is called investment, and this investment is for profit. ये जो इन्वेस्टमेंट डन किया जाता है ये केवल और केवल किसके लिए किया जाता है, प्रॉफिट के लिए किया जाता है। तो ये 5 आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आपकी कौन सी आएगी, वो आपकी आएगी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, विदेशी निवेश। अगर हम हिंदी में इसको जानने की कोशिश करें, कोई भी पैसा या कोई भी निवेश जो कहाँ से आता है, बाहर से आता है, उसको हम क्या कहते हैं, हमारे देश से जो बाहर से जो भी कोई निवेश आएगा उसे हम क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट? एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय एमएनसी, दैट इज नॉन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा 6 नंबर पे है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है?
any investment which is invest by an MNC, कोई भी निवेश जो किसके द्वारा किया जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय और विच इज इन्वेस्ट बाय द MNC इज नोन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है WTO, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो जनवरी 1995 के अंदर बना था। ध्यान से सुनिए, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मोटिव of WTO? To liberalize the world trade. फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट एंड लिबरेट the international trade, it known as World Trade Organization, which was established in 1995, and the main motive of this that to liberalize the world trade. We will discuss about WTO in detail in the later topics of this chapter. Next, eighth पे आपका क्या आता है, ट्रेड बैरियर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापार अवरोधक कहते हैं। व्हाट इज ट्रेड बैरियर्स? एनी काइंड ऑफ restrictions, any kind of restrictions which are imposed by a country to check free flow of goods and services, to check free flow of goods and सर्विसेज। क्या होते हैं व्यापार अवरोधक? इन सिंपलेस्ट फॉर्म, व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स? ट्रेड बैरियर्स आर एनी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस which are imposed by a country to check free flow of goods and services are known as trade barriers. Why these trade barriers are put by the government of a country to check the free flow of goods and services? किसी देश में कितना सामान आएगा, कितनी सेवाएं आएंगी, उसको कंट्रोल करने का किसके पास अधिकार होता है? हमारे देश की जो सरकार है या किसी भी देश की सरकार, उसके पास होता है। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हैं। किसी अननेसेसरी जो थिंग्स है उसके इंपोर्ट पर वो क्या कर सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हैं। मान लेते हैं हमारे देश में किसी वस्तु की कमी है और उस वस्तु का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। एंड बाय दिस मींस द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री कैन चेक द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स। नाउ वी स्टार्ट अबाउट आवर टॉपिक, दैट इज multinational corporations. Dear students, we have already defined that what is the definition of multinational corporation. It is a company which owns and control over production in more than one nation. मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? द कंपनीज विच ओन एंड कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, दैट आर नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी। अब कोई एमएनसी कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ये भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। कोई फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द लोकेशनल फैक्टर ऑफ एन एमएनसी। एमएनसी के कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, बताते हैं कि भैया कोई भी एमएनसी यहाँ पर लगेगी। तो सबसे पहले है क्लोजनेस टू द मार्केट। क्लोजनेस टू द मार्केट, एज यू नो दैट मार्केट इज द प्लेस वेयर वी बाय एंड सेल आवर प्रोडक्ट्स। तो कोई भी एमएनसी कहाँ लगेगी, जहाँ पर
बाजार की निकटता होगी, क्योंकि एमएनसी को अपना क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोडक्ट बेचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बाजार के पास ही अपने यूनिट को लगाना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एमएनसी को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। सेकंड जो फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। दूसरा, एमएनसी अपनी यूनिट कहाँ लगाएगी, जहाँ पर उनको क्या मिलेंगे, काफ़ी सस्ते श्रमिक मिलेंगे, तभी उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रिड्यूस होगा और प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एमएनसी का जो दूसरा लोकेशनल फैक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमएनसी जो है वो अपनी यूनिट्स कहाँ पर लगाएगी, जहाँ उन्हें चीप और क्या मिलेंगे, स्किल्ड जो लेबर है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया, सिंपल सी बात है कि एक तो रॉ मटेरियल आ गया, पावर रिसोर्सेज आ गए, बैंकिंग सिस्टम, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में काफ़ी क्या करते हैं, मदद करते हैं। आपके चौथा और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की जो नीतियां हैं वो भी क्या करती है, एमएनसी को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, काफ़ी प्रभावित करती है। कई गवर्नमेंट ने क्या बना रखे हैं, SEZS बना रखे हैं। SEZS स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। द मेन मोटिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज टू एस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक एरिया and give favorable condition to the MNC for set up their industry in our country। तो SEZS जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का एक ही मोटिव है, टू अट्रैक्ट MNC। अब कुछ फेवरेबल क्या दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है कि कोई भी अगर MNC आती है, SEZS में अपना क्या लगाती है, अपनी यूनिट लगाती है, तो उसको 5 ईयर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाता है। 5 ईयर्स के लिए क्या कर दिया जाता है, टैक्स फ्री। उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज दी जाती है, चाहे वो बैंकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशनल, वो सभी फैसिलिटीज जो है वहाँ पर क्या की जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। इंडिया में 100 से ज़्यादा SEZS हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो SEZS है उनकी संख्या केवल 3 है। और चाइना आज आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आज वर्ल्ड का माइटिएस्ट कंट्री माना जाता है, लेकिन कारण एक है, कारण क्या है कि वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी क्या है, चीप है। सो दीज आर द 4 important factors which are affecting the location of an MNC: closeness to the market to sell the finished product. Second, availability of cheap and skilled and unskilled workers, because the main motive is to reduce the cost of production. Third one, availability of other factors of production like the raw material, power resources, banking, transportation facilities, which become the base for the development of these MNC. And the government policies. Government policy सबसे important है, क्योंकि कोई government क्या चाह रही है, कितना इन्वेस्टमेंट चाह रही है, इस आधार पर वो ऐसी फेवरेबल पॉलिसी बनाती है जिससे कि MNC क्या होती है, उस देश की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिसमें मुख्य है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की क्या स्थापना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी MNC कोई लोकेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई भी जो MNC है वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है। मैं अब एक बात कर रहा हूँ एक MNC के बारे में जो ये आपको अंदाजा बता देगी कि स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन MNC कैसे होता है, कैसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या होते हैं, MNC का प्रोडक्शन होता है। ये कोई भी एक MNC है X, ओके। इसका जो रिसर्च एंड डिजाइन है कवर कहाँ पर होता है, USA और जापान जैसे देशों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज वर्ल्ड के सबसे क्या है, अच्छे देश है, सबसे डेवलप्ड कंट्री है। तो रिसर्च और डिज़ाइनिंग कहाँ होती है एक MNC की, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं कार कोई बन रही है, तो उस कार के डिज़ाइनिंग और उस पर जो रिसर्च होता है वो कहाँ होता है, USA और जापान के अंदर होता है। सेकेंड में हम देखते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सा स्टेज है, मैन्युफैक्चरिंग।
तो मैन्युफैक्चरिंग आपको मैंने बताया था कि चाइना जैसे देशों के अंदर होती है कि चाइना इज द हब ऑफ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द वर्ल्ड। विश्व के अंदर सबसे अगर सस्ता अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है तो वो कहाँ पर है? चाइना। तो वो एमएनसी क्या करती है? चाइना के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती है। नेक्स्ट है असेंबलिंग। असेंबलिंग का जो काम है वो ईस्ट जो एशियन कंट्रीज है लाइक मैक्सिको जैसे देशों में होती है, क्योंकि मैक्सिको और जो ये यूरोपियन है यहाँ से जो दुनिया की जो वर्ल्ड मार्केट है वो काफी सी रूट से क्या है कनेक्टेड है। तो ये असेंबलिंग का काम कहाँ पर होता है? मैक्सिको जैसे देशों के अंदर होता है। और इसी कंपनी का जो कॉल सेंटर है, क्या है? कॉल सेंटर, वो किन देशों में चलता है? इंडिया जैसे देशों में चलता है। अब एक एमएनसी का जो प्रोडक्शन है वो स्प्रेड हो रखा है कितने कंट्रीज के अंदर? यू कैन सी हियर दैट द रिसर्च एंड द डिजाइनिंग प्रोग्राम कहाँ चल रहे हैं? यूएसए और जापान में। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ चल रही है? चाइना, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी क्या है? चीप है। मैक्सिको में असेंबलिंग और उसको जो वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या करना है, उसका एक्सपोर्ट करना है, वो काफ़ी चीप होता है। यही कारण है कि इन देशों के अंदर असेंबलिंग चल रहे हैं। और कॉल सेंटर हमारे इंडिया के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब अगर हम मान लेते उस एमएनसी कोई कर्मचारी अगर वो अपने देश से अगर कोई वर्कर हायर कर रहा है तो 1 लाख रुपये में पर मंथ में क्या हो रहा है? हायर हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में 25,000 रुपीज़ में क्या हो जाते हैं? वर्कर्स इजीली हायर हो जाते हैं। 1 लाख में कितने वर्कर्स आ सकते हैं? 4। अब ये चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसका अल्टीमेट जो स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन है उसका अल्टीमेट एक ही ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों अलग अलग देशों के अंदर ये कंपनियां क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से उत्पादन की लागत को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। और जितनी उत्पादन की लागत कम होगी उतना ही आपका क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और आपको पता है प्राइवेट सेक्टर का एक ही मोटिव होता है, हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट। सो दिस इज द एग्जाम्पल by which I want to tell you the spreading process of production by an MNC. So this is the process by which an MNC expand and the spreading their production units in the world. Next topic is that interlinking production across countries. कि how the MNCs they interlink the production process in the different nations. किस तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी उत्पादन की लागत को कम करती है, अभी हमने थोड़ा सा उसके बारे में क्या किया था, उसका डिस्कशन किया था। और अब हम देखेंगे कि किस तरह जो एमएनसीज हैं, आपको पता है एमएनसीज कौन सी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, और वो कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। एनी इन्वेस्टमेंट विच इज मेड बाय एमएनसी, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन एमएनसी, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फिर हमने ये भी देख लिया कि कहाँ पर लगेगी एमएनसी? जहाँ पर मार्केट मिलेगी, जहाँ पर चीप एंड स्किल्ड लेबर मिलेगी, जहाँ पर अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलेंगे और गवर्नमेंट पॉलिसीज मिलेंगी। अब ये जो एमएनसी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड कैसे करती है? हाउ दे आर एबल टू एक्सपेंड दियर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन जो है वो एक्सपेंड कैसे होता है, अब हम एक एक करके इसको सीखेंगे। सबसे पहले बाय बाइंग लोकल कंपनीज। सबसे सिंपल प्रोसेस, अगर एमएनसी को अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाना है तो उसका एक इजीएस्ट वे है कि किसी भी देश की जाके लोकल कंपनी को क्या कर लीजिए? आप परचेज कर लीजिए। एज यू नो दैट दीज एमएनसीज हैव ग्रेट वेल्थ एंड दे कैन क्वाइट इजीली डू सो। वे ऐसा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? बहुत सा पैसा होता है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाता हूं। एक एमएनसी है जिसका नाम क्या है? कारगिल फूड्स। क्या नाम है? कारगिल फूड्स, जो कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। वो इंडिया के अंदर आती है और इंडिया के अंदर एक वेल रेप्यूटेड परक फूड्स, यहाँ की इंडिया की एक लोकल कंपनी है जो क्या बनाती है? एडिबल ऑयल बनाती है। क्या बनाती है? एडिबल ऑयल, जिसके पास अपनी कितनी रिफाइनरीज है? 4 क्या है? रिफाइनरीज हैं जिसमें ऑयल बनाती है। अब कारगिल फूड ने क्या किया?
परक फूड को, जो एक वेल रेप्यूटेड जो क्या है एडिबल ऑयल की एक कंपनी है, इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से रन कर रही है, उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। अब जहां पर भी परक फूड के प्रोडक्ट्स बिकते थे, अब वो किसके अंडर में आ गए, कारगिल फूड्स के अंडर में आ गए। अब कारगिल फूड्स क्या करता है, 5 मिलियन पाउच जो है वो डेली क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है, किसके, एडिबल ऑयल के। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय विच द MNCs they expand their production process, they interlink production across the countries by buying the local companies. It is the simplest way by which the MNC can expand their production, like Cargill Food, which is an MNC of United States of America, buying the local company of India, Parak Foods, that manufacture edible oil, which has 4 refineries. But after the control or after the buying of this local company into the control of Cargill Foods, now Cargill Foods become the largest company of India, which produce 5 million pouches of edible oil per day. So it shows that the first step, that how the MNCs they expand their production, किस तरह वो अपने प्रोडक्शन को क्या करते बढ़ाते हैं। So it is the first way by which the MNCs they manage to keep the cost of production become low. The first is the buying the local companies. Second जो है वो पार्टनरशिप होता है कि MNCs sometimes MNCs make partnership with the local companies. तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पार्टनरशिप with local or domestic companies. Sometimes MNCs join hands with the domestic कंपनीज टू प्रोड्यूस जॉइंटली। कई बार MNCs क्या करती है, किसी देश की लोकल कंपनी के साथ क्या कर लेती है, हाथ मिला लेती है और क्या करती है, प्रोडक्शन शुरू कर देती है। इससे क्या फायदा मिलता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से ही तैयार मिलता है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का, इस पार्टनरशिप का लोकल कंपनी को भी फायदा होता है। लोकल कंपनीज को क्या फायदा होता है, फर्स्ट जो है एडिशनल इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एज यू नो कि MNCs के पास काफ़ी क्या होता है, मोटा पैसा होता है, और वो पैसा अब जब पार्टनरशिप होती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किसको मिल जाता है, लोकल कंपनीज को मिल जाता है, जिससे कि वो क्या कर सकती है, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा सकती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज फॉर द लोकल कंपनी विद द पार्टनरशिप विद MNCs, दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दूसरा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या मिल जाती है, किसको मिल जाती है, लोकल कंपनीज को मिल जाती है, जिससे कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो काफी क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। सो द सेकेंड वे हाउ द MNCs दे कीप द cost of production low, so by making partnership with the local or the domestic company, this is also beneficial for the local companies because they get additional investment in the form of money and latest technology by which they can increase their production process. Next, third पे क्या आता है, by giving orders, by giving orders to local companies or the local supplier. कई बार MNC क्या करती है, ऑर्डर दे देती है, अपना ऑर्डर प्लेस कर देती है लोकल कंपनीज को। समटाइम्स the most common route by which the MNC can expand its production, first by buying the local company, second by making partnership, and now the third one that by giving orders. ऑर्डर देकर भी क्या करती है MNC, अपने जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। लार्ज MNC क्या करती है, अपने ऑर्डर को प्लेस कर देती है और जो ऑर्डर बनकर तैयार हो जाता है उसके ऊपर अपनी क्या कर देती है, ब्रांड लगा देती है, अपने ब्रांड का क्या करती है, यूज करती है। सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कोई शूज बनवाए, शूज को लोकल सप्लायर को क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया कि हमें 5000 पेयर ऑफ शूज चाहिए, और उन शूज को जैसे ही वो बनकर आए तो उस पर किसका टैग लगा दिया, अपने ब्रांड का क्या लगा दिया, टैग लगा दिया। यही फुटवेयर, स्पोर्ट्स, ये कुछ इस तरह की क्या है MNCs हैं जो क्या करती है, अपना रॉ मटेरियल जो है,
अपने जो प्रोडक्ट्स है वो कहीं बाहर तैयार करवाती है, ऑर्डर देकर तैयार करवाती है और बाद में क्या करती है, बाद में अपना टैग लगाकर, अपना ब्रांड लगाकर उसको क्या कर देती है, इम्पोर्टेंट उसकी वैल्यू को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। द लार्ज एमएनसी have tremendous power to determine price, quality, delivery and the labor condition for these distinct products। तो ये सारी 3 प्रकार हैं जिस प्रकार से जो MNCs हैं वो अपना क्या करती है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको संभालती है और अपनी जो प्रोडक्शन की जो लागत है उसको क्या करती है, कंट्रोल में रखती है। So dear students, what we learned today about the important terms of this chapter. Second, we learn about MNC. What is MNC? What are the locational factor of MNC? Next, we discuss that what is the role of government policies to attract the MNC. And the third, that is very important, that how the MNCs, multinational corporation, can keep their कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, किस तरह वो अपने उत्पादन की लागत को कम करने में क्या रहती है, सफल रहती है। कई बार वो लोकल कंपनीज को खरीद लेती है, कई बार वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और कई बार वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को ऑर्डर प्लेस कर देती है। गारमेंट्स हो गए, आपके फुटवियर्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स हो गए, ये कुछ एमएनसी है जो अपने ऑर्डर को प्लेस करके बाद में उस प्रोडक्ट के ऊपर अपना टैग लगाकर उसको क्या बना देती है, ब्रांड बना देती है। सो टुडे वी डिस्कस about the MNC and its working style,